کیا ہوتا ہے جب اولاد کی تڑپ میں ایک عورت اللہ کو ناراض کر کے کالے جادو کا حرام راستہ چن لیتی ہے؟ لیلا نے ایک بچے کے لیے شیطان سے سودا کیا، لیکن اللہ کے عذاب نے راتوں رات اس کی بے شمار دولت اور اس معصوم بچی کو ریگستان کی ریت میں دفن کر دیا۔ پر اللہ کی قدرت دیکھیے، جس بچی کو انسانوں نے کھو دیا اسے ریگستان کے خونخوار شیروں نے پال کر بڑا کیا۔ کیسے کالے جادو کی یہ خوفناک لعنت سچی توبہ سے ٹوٹی۔ آئیے شرک اور عظیم رحمت کی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کو شروع سے جانتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، ریگستان کے بیچوں بیچ بسے الزبارہ نام کے ایک بے حد خوبصورت اور ہرے بھرے نخلستان میں طارق نام کا ایک فنکار رہتا تھا۔ طارق کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ پورے عرب میں شیشے کا سامان بنانے والا سب سے ماہر اور عمدہ کاریگر مانا جاتا تھا۔ طارق جب اپنی بھٹی کے سامنے کھڑا ہوتا تو آگ کی تپش اس کے چہرے کو لال کر دیتی تھی اور وہ پگھلی ہوئی ریت کو ایک نئی زندگی دے دیتا تھا۔ اس کی پیاری بیوی لیلا ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر صبح ان کے گھر کے آنگن میں تازے پکے ہوئے کھجوروں اور چلتے ہوئے مہنگے عود کی میٹھی خوشبو مہکتی رہتی تھی اور آس پاس کے سبھی لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ لیکن اس تمام باہری خوبصورتی اور امیری کے باوجود ان کے عالیشان گھر میں ایک ایسا خوفناک سناٹا چھایا رہتا تھا جو ان کے دلوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ سالوں کی شادی کے بعد بھی اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ گھر کے آنگنوں میں بچوں کی معصوم کھلکھلاہٹ سننے کے لیے ان کے کان بری طرح ترس گئے تھے۔ جب لیلا محلے کی دوسری عورتوں کو اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہوئے دیکھتی تو اس کے دل میں ہزاروں سوئیاں چبھنے لگتی تھی اور اس کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ رات کے گہرے اندھیرے میں جب طارق گہری نیند سو جاتا تو لیلا چپکے سے اٹھ کر مصلے پر بیٹھ جاتی اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گرم آنسو زمین کو بھگو دیتے تھے۔ وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی امید ٹوٹنے لگی اور اس کے دل میں ایک خوفناک ڈر نے ہمیشہ کے لیے گھر کر لیا۔ لیلا کو ہر پل یہ خوف ستانے لگا تھا کہ اولاد کی چاہت میں کہیں اس کا شوہر طارق دوسری شادی نہ کر لے اور اسے ہمیشہ کے لیے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑ دے۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے اور جب اس میں سوتن کا ڈر اور اولاد کی تڑپ مل جائے تو انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی ڈگمگاتے ہوئے ایمان اور کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے شیطانی طاقتیں ہمیشہ گھات لگائے بیٹھی رہتی ہیں۔ الزبارہ کے بھیڑ بھاڑ والے بازار میں ایک دن ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی منحوسیت تھی اور اس کے کپڑوں سے سڑی ہوئی جڑی بوٹیوں کی بو آ رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوفناک اور ظالم کالا جادوگر تھا جسے دنیا ڈارک الکیمسٹ یعنی کالے کیمیاگر کے نام سے جانتی تھی۔ لیکن اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بہت ہی نیک اور رحم دل حکیم کا بیش بدلا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی اصلیت اور اس کے کالے علم کو نہ پہچان سکے۔ کالے جادوگروں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں اور کمزور ایمان والے لوگوں کو بہت آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ اس کی تیز کالی اور خوفناک نگاہوں نے بازار میں اداس اور پریشان حال لیلا کو دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اپنی مجبوری میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ایک شام جب آسمان میں سورج ڈوب رہا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموش لالی چھائی ہوئی تھی، وہ ڈونگی حکیم چپکے سے لیلا کے دروازے پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی زہریلی لیکن میٹھی اور ہمدردی بھری آواز میں لیلا سے کہا، اے پریشان حال خاتون، میں تمہارے دل کا درد جانتا ہوں، میں تمہاری سونی گود بھر سکتا ہوں۔ لیلا جو پہلے ہی مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوب رہی تھی، یہ سن کر پوری طرح چونک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے اس اجنبی کو گھر کے اندر بلا لیا۔ جادوگر نے لیلا کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری قسمت کے ستارے بند ہیں
लेकिन मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो तुम्हारी हर मुराद को रातों रात पूरी कर सकता है। लैला ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं अपनी औलाद के लिए अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हूं, बस मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उस काले जादूगर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। मेरी कीमत कुछ और है जो तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें अपने शौहर तारिक का बनाया हुआ वो नायाब और बेशकीमती लाल रूबी का प्याला मुझे देना होगा, जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी की महारत और कला लगा दी है। लैला यह सुनकर बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि वो रूबी का प्याला तारिक की जान था। वो उसे दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा अजीज था। लेकिन जादूगर की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी आवाज को और सर्द करते हुए एक ऐसी खौफनाक शर्त रखी जिसने लैला की रूह को कपा दिया। उसने कहा, और सबसे बड़ी बात, इस काम के लिए तुम्हें अपने रब के बनाए हुए पाक उसूलों को तोड़ना होगा। तुम्हें एक ऐसा अमल करना होगा जो तुम्हारे दीन में हराम है। यह सीधा सीधा शिर्क और शैतानी ताकतों से मदद मांगने का बुलावा था। लैला अच्छी तरह जानती थी कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और जादू करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक तरफ उसका ईमान और उसकी आखिरत थी, और दूसरी तरफ एक बच्चे की तड़प और अपने शौहर को खोने का खौफनाक डर जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शैतान ने उसके कानों में सरगोशी की कि बस एक बार ये गुनाह कर ले, बाद में अल्लाह से रो रो कर तौबा कर लेना। वो तो बड़ा रहीम और गफूर है। कमरे में जलते हुए चिराग की लौ अचानक जोर से फड़फड़ाने लगी, जैसे हवा भी उसे इस भयानक गुनाह और शैतानी सौदे से रोकने की कोशिश कर रही हो। लैला बुत बनकर खामोश खड़ी थी। उसके हाथों से ठंडा पसीना छूट रहा था और उसके दिमाग में एक भयंकर जंग चल रही थी। क्या वो एक औलाद के लिए अपनी आखिरत का सौदा कर लेगी? क्या लैला अपने ईमान का गला घोटकर उस शैतानी रास्ते पर कदम रखेगी जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही और बर्बादी है? आधी रात का खामोश और भयानक वक्त था, जब पूरी दुनिया सो रही थी। लैला अपने ही घर से एक चोर की तरह दबे पांव बाहर निकली। उसने अपने कांपते हुए हाथों में तारिक का बनाया हुआ वो नायाब और बेशकीमती लाल रूबी का प्याला मजबूती से सीने से लगा रखा था। रात की सर्द और तेज हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर औलाद की तड़प की जो आग जल रही थी वो हर डर से बड़ी थी। वो बस्ती से दूर उस काले कीमियागर के खौफनाक और अंधेरे तहखाने की तरफ बढ़ने लगी, जिसके रास्तों में मौत का सन्नाटा पसरा था। जब वो उस भूल भुलैया जैसे तहखाने में दाखिल हुई तो वहां सड़ी हुई मिट्टी, जले हुए खून और गंधक की एक बहुत ही दम घोंटू बदबू थी। दीवारों पर जलती हुई मशालों की पीली और कांपती हुई रोशनी में उस जादूगर का शैतानी चेहरा और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। लैला ने भारी दिल से वो चमकता हुआ लाल रूबी का प्याला उस जालिम जादूगर के काले और झुर्रियों वाले हाथों में सौंप दिया। प्याला मिलते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खौफनाक हंसी उस अंधेरे और गहरे तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। फिर उसने अपने चोगे के अंदर से एक अजीब सा बीज निकाला। वो बीज बिल्कुल काला था, लेकिन वो एक जिंदा दिल की तरह धड़क रहा था। जब लैला ने उस बीज को अपने हाथ में लिया तो उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे वो कोई मामूली बीज नहीं बल्कि कोई शैतानी चीज हो। जादूगर ने अपनी भारी आवाज में हुक्म दिया, आज रात आसमान में खूनी चांद निकलेगा। इसे ठीक आधी रात को रेगिस्तान की रेत में गाड़ देना। लैला वो बीज लेकर बदहवासी में वापस लौटने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसे अपने आसपास सायों के चलने का एहसास हो रहा था। अचानक वीरान रेगिस्तान के रास्ते में उसे एक अंधा और फटेहाल दरवेश दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर इबादत का एक अजीब सा नूर चमक रहा था। उस अंधे दरवेश ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और लैला को रोकते हुए ऐसी बात कही जिसने लैला की रूह को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने कहा, ऐ नादान औरत, रुक जा। अंधेरे और गुनाह की मिट्टी में जो फूल खिलता है वो सिर्फ जहरीले और जानलेवा कांटे ही देता है। याद रख,
शैतान के इस बीज से उगने वाले अजाब को सिर्फ और सिर्फ सच्ची तौबा के आंसुओं से ही धोया जा सकता है, वरना सब तबाह हो जाएगा। दरवेश की चेतावनी में अल्लाह का साफ पैगाम था, लेकिन औलाद की अंधी चाहत ने लैला की आंखों और उसके ज़मीर पर बहुत भारी पर्दा डाल दिया था। उसने उस अल्लाह वाले की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और दौड़ती हुई रेगिस्तान के बीचों बीच उस वीरान जगह पर पहुंच गई। आसमान में एक खौफनाक और सुर्ख लाल रंग का खूनी चांद चमक रहा था, जिसकी डरावनी रोशनी में रेगिस्तान की रेत भी खून जैसी लाल लग रही थी। लैला ने अपने कांपते हाथों से उस ठंडी रेत को खोदा और उस तड़कते हुए काले बीज को जमीन में गाड़कर शैतान के साथ अपना सौदा पक्का कर लिया। देखते ही देखते एक भयानक चमत्कार हुआ। जमीन फटी और उस बीज से एक अजीबोगरीब जादुई पौधा बहुत तेजी से बाहर निकलने लगा। उस जादुई पौधे का फूल बहुत ही खौफनाक और अजीब था। उसका आधा हिस्सा चांदी की तरह चमक रहा था और आधा हिस्सा रात के अंधेरे जैसा काला था। जादूगर के बताए हुए तरीके के मुताबिक लैला ने आगे बढ़कर उस फूल का चमकता हुआ चांदी वाला पत्ता तोड़ा और बिना सोचे समझे उसे खा लिया। वो पत्ता जबान पर रखते ही बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन गले से नीचे उतरते ही वो आग के एक सुलगते हुए अंगारे में तब्दील हो गया। कुछ ही महीनों के बाद लैला और तारिक के घर में एक बहुत ही खूबसूरत और चांद जैसी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने शम्स रखा। शम्स की पैदाइश के वक्त एक बहुत ही अजीब बात हुई। उस बच्ची की नाजुक गर्दन में पैदाइश से ही चांदी के चांद जैसा एक तावीज मौजूद था। वो तावीज एक जादुई रोशनी से चमक रहा था। लैला उसे देखकर अंदर ही अंदर डर गई, लेकिन बच्ची की किलकारियों ने उसका सारा खौफ बुला दिया। घर में सालों बाद गूंजने वाली इस मासूम हंसी ने तारिक को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया। वो अपनी बेटी को देखकर फूला नहीं समाता था। तारिक को लैला के उस खौफनाक और शैतानी सौदे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे लगा कि ये बच्ची सिर्फ अल्लाह की रहमत और फजल से हुई है। पूरे अल जुबारा में जश्नों का माहौल था। तारिक ने गरीबों को खाना खिलाया और खूब सदका खैरात किया, क्योंकि उसका घर अब जन्नत बन चुका था। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि गुनाह की बुनियाद पर बनी हुई खुशी कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहती, बल्कि वो एक बहुत बड़े अजाब की शुरुआत होती है। लैला और तारिक अपनी दुनिया में मगन थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके आशियाने के ऊपर एक भयानक लानत के काले बादल घिर चुके हैं। वो शैतानी बीज जिसे लैला ने अपने हाथों से बोया था, अब अपनी कीमत वसूल करने के लिए बेकरार था, और उनकी ये झूठी खुशी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी बस्ती सुकून की नींद सो रही होती, तो उस चांदी के तावीज में से एक बहुत ही खौफनाक और सर्द नीली रोशनी निकलने लगती थी। लैला कई बार उस रोशनी को देखकर डर के मारे कांपने लगती और उसे उस अंधे दरवेश के वो खौफनाक अल्फाज बार बार अपने कानों में गूंजते हुए सुनाई देते थे, सिर्फ सच्ची तौबा के आंसुओं से ही धोया जा सकता है। ये जुमला उसकी रातों की नींदें हराम कर देता था, और वो चाह कर भी तारिक को सच नहीं बता पा रही थी। उसे डर था कि अगर तारिक को इस शिर्क और काले जादू के बारे में पता चला, तो वो उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल कर रेगिस्तान में फेंक देगा। और इसी खौफ और गुनाह के बोझ तले दबकर लैला ने खामोशी से वो जहर अपनी जिंदगी में घोल लिया, जो आने वाले वक्त में उनकी पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। दूसरी तरफ वो काला कीमियागर अपने अंधेरे तहखाने में बैठा हुआ एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी साजिश के अगले हिस्से की तैयारी कर रहा था, क्योंकि शैतान कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। वो इंसान से उसकी सबसे प्यारी और अजीज चीज छीनने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वक्त गुजरता गया और लैला की वो झूठी खुशी एक बहुत बड़े अजाब को दावत दे रही थी, क्योंकि शैतान कभी अपना कर्ज नहीं भूलता। तारिक अपनी बीवी और प्यारी बेटी शम्स के साथ अपना बहुत बड़ा और अमीर काफिला लेकर एक लंबे सफर पर निकला था। ऊंटों के गलों में बंधी घंटियों की मीठी आवाज और उनके पास मौजूद बेशुमार दौलत उनके गुरूर और खुशी की गवाही दे रही थी। उनका सफर बहुत ही सुकून से गुजर रहा था,
लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि काले जादू की वो लानत उनका पीछा कर रही है। काले कीमियागर ने अपनी खौफनाक साजिश के तहत उस जादुई तावीज के जरिए एक ऐसी शैतानी ताकत को जगा दिया था जो सब कुछ तबाह करने वाली थी। अचानक आसमान का रंग तेजी से बदलने लगा। सूरज की सुनहरी और गर्म रोशनी एक भयानक, जहरीले और काले अंधेरे में तब्दील होने लगी। हवा में एक अजीब सी गंधक और जलते हुए कोयले की बदबू फैल गई, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया। रेगिस्तान की खामोशी को चीरते हुए एक ऐसी खौफनाक आंधी उठी जिसने उस पूरे काफिले की रूह को कंपा कर रख दिया। यह कोई मामूली रेतीला तूफान नहीं था, बल्कि ये लैला के उस खौफनाक गुनाह और काले जादू का एक बहुत बड़ा और भयानक अजाब था। हवा में उड़ती हुई तेज रेत चाकुओं की तरह उनके चेहरों और जिस्मों को बेरहमी से काट रही थी और ऊंट खौफ के मारे जोर जोर से चिंगारने लगे। तूफान की गर्जना इतनी भयानक थी जैसे हजारों शैतान एक साथ चीख रहे हों। आसमान से जमीन तक सिर्फ मौत का घना अंधेरा छा गया था। रेत के उस खौफनाक बवंडर ने भारी ऊंटों और सामान को तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर था। उस अंधे और डरावने तूफान के बीच लैला ने अपनी नाजुक सी बच्ची शम्स को अपने सीने से पूरी ताकत से चिपका रखा था, लेकिन हवा का एक ऐसा जोरदार और जादुई झोंका आया जिसने लैला के हाथों को बेजान कर दिया और शम्स उसकी बाहों से छूटकर हवा में उड़ गई। तूफान की उस भयानक गर्जना के बीच लैला की चीखें दबकर रह गईं। वो पागलों की तरह रेत में हाथ मारते हुए अपनी बेटी को ढूंढने लगी। वो बार बार शम्स, मेरी बच्ची, पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज उस जालिम आंधी के शोर में कहीं दबकर रह गई। जब वो भयानक तूफान थमा और धूल छटी तो उनके उस आलीशान काफिले और बेशुमार दौलत का नामो निशान तक मिट चुका था। हर तरफ सिर्फ खामोश रेत के ऊंचे टीले थे। तारीख की वो हंसती खेलती जन्नत और उसकी सारी जिंदगी की मेहनत शमशान में बदल चुकी थी। लैला रेत पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके होंठ सूख चुके थे और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तभी उसे उस अंधे अल्लाह वाले दरवेश की वो खौफनाक चेतावनी याद आई। ये फूल सिर्फ जहरीले और जानलेवा कांटे ही देगा। लैला को एहसास हो गया कि ये सब उसी काले जादू और अल्लाह के साथ किए गए शिर्क का बहुत बड़ा अजाब है जिसे उसने खुद मोल लिया था। उसका ज़मीर अब और इस गुनाह का बोझ नहीं सह सका। वो तारिक के कदमों में गिरकर जोर जोर से धाड़े मार कर रोने लगी। उसने रोते हुए तारिक को अपने उस खौफनाक गुनाह, काले जादूगर से किए गए शैतानी सौदे और उस काले बीज के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तारिक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बीवी ने इतना बड़ा हराम काम किया है। गम, गुस्से और धोखे की आग ने तारिक को अंदर से जलाकर राख कर दिया। उसने आसमान की तरफ देखकर दर्द भरी चीख मारी। उसने लैला से रोते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया लैला? तुमने एक औलाद की चाहत में अपने पैदा करने वाले रब को ही नाराज कर दिया। तुमने दुनिया की झूठी मोहब्बत में अपनी आखिरत बेच दी और उसी का नतीजा है कि आज अल्लाह ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। रातों रात उनका सारा गुरूर, उनकी बेशुमार दौलत, उनका रुतबा और उनकी जान से प्यारी बेटी, सब कुछ उस रेगिस्तान की रेत में दफन हो गया। अब वो अल जुबारा के सबसे अमीर इंसान से रेगिस्तान के सबसे गरीब और फटेहाल भिखारी बन चुके थे, जिनके पास जिस्म छुपाने को पूरे कपड़े तक नहीं थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने का रास्ता। दोनों ने उस तपती हुई जलती रेत पर अपने माथे टेक दिए और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए तौबा के उस लंबे और दर्दनाक सफर की शुरुआत की। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है। वो अगर अपने बंदों को अजाब देता है तो अपनी रहमत के दरवाजे भी पूरी तरह से बंद नहीं करता। उस खौफनाक तूफान के बाद रेगिस्तान के एक बिल्कुल वीरान और अनजान हिस्से में छोटी सी शम्स
रेत पर पड़ी भूख और प्यास से तड़प कर रो रही थी। उसके गले में पड़ा वो चांदी का तावीज तेज धूप में चमक रहा था और उसकी मासूम रोती हुई आवाज उस भयानक सन्नाटे को चीर रही थी। तभी वहां रेत के टीलों के पीछे से एक बहुत ही खूंखार और विशाल शेरनी बाहर निकली, जिसके पीले दांतों से खौफ टपक रहा था। उस शेरनी की आंखों में एक अजीब सा दर्द और तड़प थी। कुछ ही घंटों पहले जालिम शिकारियों ने उसके छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। वो शेरनी अपने बच्चों के गम में अंदर से पूरी तरह टूटी हुई थी और गुस्से में किसी भी इंसान को चीर फाड़ करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही उस शेरनी ने उस छोटी सी इंसान की बच्ची को रेत पर तड़पते और रोते हुए देखा, तो उसका खूंखार जानवर वाला दिल एक पल के लिए ठहर गया। अल्लाह की कुदरत से उस शेरनी के दिल में अचानक कोमल भावना जाग उठी। वो धीरे धीरे शम्स के पास आई, बच्ची को ध्यान से देखा और शांत होकर वहीं ठहर गई, मानो उसकी मौजूदगी की रखवाली कर रही हो। एक खूंखार जानवर जो इंसानों का खून पीने के लिए बेकरार था, आज उसी इंसान की बच्ची को महफूज जगह पर ले जा रहा था। यह अल्लाह की ही कुदरत है, जिसने एक मासूम बच्ची की हिफाजत के लिए रेगिस्तान के सबसे खतरनाक जानवर के दिल में रहम और ममता डाल दी। रेगिस्तान की तपती हुई रेत और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं के बीच वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमने लगा। साल गुजरते गए और वो छोटी सी नाजुक बच्ची शम्स अब उस बेरहम और खौफनाक रेगिस्तान की एक मजबूत और निडर बेटी बन चुकी थी। खूंखार शेरों के झुंड के साथ रहते रहते शम्स की रगों में भी इंसानी खून के साथ साथ एक जंगली और खौफनाक ताकत दौड़ने लगी थी। उसकी त्वचा रेगिस्तान की तेज धूप में तपकर सुनहरी हो गई थी और उसके बाल हवा के झोंकों के साथ किसी शेर की अयाल की तरह उड़ते थे। शम्स के पैरों में इतनी फुर्ती आ गई थी कि वो तपती हुई रेत पर शिकार के पीछे ऐसे दौड़ती थी जैसे कोई तेज आंधी चल रही हो। अल्लाह की कुदरत देखिए, इंसानों की बस्ती से दूर रहकर भी उसने जानवरों की उस छुपी हुई जबान को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। शेरों की खौफनाक दहाड़, हवाओं की सरसराहट और परिंदों की आवाजें शम्स के लिए एक ऐसी जबान बन गई थी जिसे सिर्फ वो समझ सकती थी। उसके गले में चमकता हुआ वो चांदी का तावीज आज भी मौजूद था, जो उसकी भूली हुई और धुंधली सी इंसानी पहचान की इकलौती निशानी था। लेकिन रेगिस्तान की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। अल्लाह अपने बंदों को हर कदम पर बहुत कड़े और मुश्किल इम्तिहानों से गुजारता है। एक साल ऐसा भयानक सूखा पड़ा कि आसमान से आग बरसने लगी और रेगिस्तान की जमीन प्यास से तड़पकर बुरी तरह दरकने लगी। पानी की एक एक बूंद के लिए जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। हवा में सूखी हुई मिट्टी और मौत की एक बहुत ही दम घोटू बदबू फैल गई थी। लेकिन शम्स ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सूखी और फटी हुई उंगलियों से जमीन खोदकर अपनी शेरनी मां और झुंड के लिए पानी तलाश किया। रेगिस्तान की उस खामोश और खौफनाक रात में शम्स का सामना लकर बग्गों के एक बहुत ही भूखे और खून के प्यासे झुंड से हो गया। अंधेरे में उन लकड़ बग्गों की चमकती हुई पीली आंखें और उनके मुंह से टपकती हुई सड़ी हुई लार किसी भयानक मौत का मंजर पेश कर रही थी। वो छोटे बच्चों को नोचना चाहते थे, लेकिन शम्स एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़ी हो गई और किसी जंगली जानवर की तरह उन पर झपट पड़ी। उसने अपने हाथों में एक नुकीली हड्डी पकड़ रखी थी, जिससे उसने उन खूंखार दरिंदों को लहूलुहान कर दिया और अपने झुंड की जान बचाई। लेकिन शम्स की जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक इम्तिहान तब आया जब एक बहुत ही विशाल और जहरीले सांप ने उनकी मान पर हमला कर दिया। उस काले और भयानक सांप की फुफकार इतनी तेज थी कि हवा में भी जहर घुल गया। वो सीधा उस बूढ़ी शेरनी मां को डसने वाला था। शम्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जहरीले और जानलेवा सांप की गर्दन को अपने नंगे हाथों से पूरी ताकत से दबोच लिया। सांप का ठंडा और खुरदुरा जिस्म शम्स के हाथों से लिपट गया, लेकिन शम्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जालिम सांप का सिर कुचल दिया। उसने अपनी उस जानवर मां का कर्ज चुका दिया था, जिसने उसे उस खौफनाक तूफान के बाद रेगिस्तान की तपती रेत से उठाकर सीने से लगाया था।
और दूसरी तरफ मीलों दूर एक बिल्कुल अनजान और अजनबी शहर में शम्स के असली माँ बाप अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक इम्तिहान दे रहे थे। तारिक और लैला, जो कभी अल जुबारा के सबसे अमीर और इज्जतदार लोग हुआ करते थे, आज उसी शहर की धूल भरी और गंदी गलियों में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनकी कमर टूट चुकी थी और वो लोगों के घरों में चमड़े के भारी मशकीज़ों से पानी ढोने वाले मामूली और फटेहाल मजदूर बन चुके थे। मशकीज़ों के भारी बोझ से तारिक के कंधों का मांस छिल चुका था और लैला के नाजुक हाथों में बहुत गहरे और दर्दनाक छाले पड़ चुके थे। कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर जब वो लोगों की झड़कियां और गालियां सुनते तो उन्हें अपनी उस दौलत के गुरूर की याद आती जो मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन अल्लाह की कसम, ये तकलीफें कोई अजाब नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से उनके गुनाहों को धोने और उन्हें पाक करने का जरिया थी। रात के गहरे और खामोश अंधेरे में जब उनके थके हुए और टूटे हुए जिस्म दर्द से करा रहे होते, तब भी उनका मुसल्ला आंसुओं से भीगा रहता था। लैला अपने जख्मी हाथों को आसमान की तरफ उठाकर जोर जोर से रोती और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने उस भयानक शिर्क की माफी मांगती थी। या अल्लाह, मेरे गुनाहों ने मुझे तबाह कर दिया, मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया, मुझे माफ कर दे मेरे मौला, मुझे माफ कर दे। वो दोनों मियाँ बीवी दिन रात तौबा के आंसुओं से अपने काले हो चुके ज़मीर को धो रहे थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की असीम रहमत और उसकी करम नवाजी पर पूरा और पक्का यकीन था, जो कभी भी किसी तौबा करने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाता। रेगिस्तान की उस खुरदुरी और बेरहम जिंदगी ने शम्स को फौलाद बना दिया था, लेकिन उसकी बूढ़ी शेरनी मां अब मौत की दहलीज पर खड़ी थी। शेरनी की सांसें उखड़ रही थीं और उसके विशाल जिस्म का वो रोब और ताकत अब एक कमजोर और दर्दनाक तड़प में बदल चुकी थी। शम्स से अपनी उस जानवर मां का तड़पना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे मालूम था कि इस जानलेवा बीमारी का इलाज सिर्फ एक खास जड़ी बूटी में, और वो नायाब और खुशबूदार जड़ी बूटी सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के सबसे बड़े और महफूज शाही नखलिस्तान के अंदर ही उगती थी। ये शाही नखलिस्तान कोई मामूली जगह नहीं थी। इसके चारों तरफ रियासत के सबसे खूंखार और हथियारों से लैस पहरेदारों का कड़ा पहरा था। शम्स ने रात के उस घने और खामोश अंधेरे का फायदा उठाया। वो किसी खामोश परछाई की तरह खजूर के ऊंचे दरख्तों के बीच से गुजरने लगी। हवा में चमेली के फूलों की मीठी महक और ठंडे मीठे पानी के गिरने की छम छम आवाज आ रही थी, जो रेगिस्तान की खुश्की से बिल्कुल अलग थी। शम्स के पैरों में किसी जंगली बिल्ली जैसी फुर्ती थी। वो बिना कोई आवाज किए शाही बाग की उन गीली और ठंडी क्यारियों तक पहुंच गई। तभी अचानक पत्तों के सरसराने की आवाज हुई। रियासत के अमीर का इकलौता बेटा और सबसे बहादुर सिपहसालार फारिस वहां गश्त कर रहा था। फारिस कोई आम शहजादा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार और आंखों में सच्चाई की एक बहुत ही तेज और पाकीज़ा चमक थी। फारिस की नजर अचानक उस जंगली लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो बिना किसी खौफ के शाही बाग में जड़ी बूटियां उखाड़ रही थी। फारिस अपनी जगह पर पुत बनकर खड़ा रह गया। उसने जिंदगी में कभी किसी लड़की के अंदर इतनी निडरता और ऐसी जंगली कशिश नहीं देखी थी। शम्स के सुनहरे उलझे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर रेगिस्तान की वो बेबाक और आजाद रूह साफ झलक रही थी। तभी बाग की झाड़ियों से एक छोटा खूंखार शेर का बच्चा निकलकर शम्स के पैरों से लिपट गया और शम्स ने उसे बहुत प्यार से सहलाया। फारिस ये देखकर पूरी तरह हैरान और सन्न रह गया कि रेगिस्तान के सबसे खौफनाक जानवर इस अनजान लड़की के इशारों पर कैसे नाच रहे हैं। लेकिन इस शाही बाग में सिर्फ फारिस की नजरें ही नहीं थी जो शम्स का पीछा कर रही थी। वहां मौत का एक बहुत बड़ा साया भी मौजूद था। महल की सबसे ऊंची और अंधेरी बालकनी में एक बहुत ही खौफनाक और जालिम शख्स खड़ा था, जिसकी आंखें किसी भूखे गिद्ध की तरह तेज थीं। ये वही पुराना और खौफनाक काला कीमियागर था
जिसने सालों पहले लैला को वो शैतानी बीज देकर उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। आज वो जालिम जादूगर अपनी चालाकियों और काले इल्म के जोर पर इस रियासत के अमीर का सबसे ताकतवर और भ्रष्ट वजीर बन चुका था। वजीर के जिस्म से आज भी वही गंधक और सड़े हुए खून की बदबू आती थी, लेकिन उसने रियासत के लोगों को अपने काले जादू से अंधा कर रखा था। जैसे ही बादलों के पीछे से चांद बाहर निकला, उसकी दूधिया रोशनी शम्स की नाजुक गर्दन में पड़े उस चांदी के तावीज पर पड़ी। वो जादुई तावीज एक खौफनाक नीली रोशनी के साथ चमक उठा। वजीर की वो पीली और खौफनाक आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो फौरन पहचान गया कि ये कोई मामूली जंगली लड़की नहीं है। ये तो उसी शैतानी और काले बीज की पैदाइश है जिसे उसने सालों पहले बोया था। वजीर के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और शैतानी मुस्कुराहट फैल गई, जिससे उसके पीले और सड़े हुए दांत रात के अंधेरे में चमकने लगे। उसे जिस चीज की बरसों से तलाश थी, वो आज खुद चलकर उसके शाही महल के खौफनाक जाल में फंसने के लिए आ गई थी। वजीर अच्छी तरह जानता था कि इस लड़की की रगों में वो जादुई और रूहानी ताकत दौड़ रही है जो उसे हमेशा के लिए अमर बना सकती है। अगर वो किसी तरह इस लड़की को जिंदा पकड़ ले और काले इल्म के जरिए इसके जिस्म की सारी रूहानी ताकत और खून को पूरी तरह निचोड़ ले, तो दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि मौत का फरिश्ता भी उस जालिम काले जादूगर की शैतानी रूह को कभी अपने कब्जे में नहीं ले सकेगा। वजीर ने अपने कांपते और झुर्रियों वाले काले हाथों को आपस में रगड़ा। उसकी रगों में एक अजीब सा शैतानी लालच और जुनून दौड़ने लगा। उसने उसी पल ये खौफनाक फैसला कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर, चाहे कितने ही बेगुनाहों का खून क्यों ना बहाना पड़े, इस लड़की को हासिल करेगा। उधर फारिस, जो शम्स की उस मासूमियत और जंगली हुस्न में पूरी तरह खो चुका था, इस बात से बिल्कुल अनजान था कि महल में क्या साजिश पक रही है। फारिस के दिल में इस अजनबी लड़की के लिए एक बहुत ही पाकीज़ा और सच्ची हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो उसे हर खतरे से बचाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका सामना अब किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे शैतान से होने वाला है जिसने अपनी रूह इब्लीस को बेच दी है। शम्स ने अपनी शेरनी माँ के लिए वो कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठी की और खामोशी से वापस रेगिस्तान के उस घने अंधेरे में गायब हो गई। फारिस बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसे एहसास हो गया था कि ये मुलाकात कोई मामूली इत्तेफाक नहीं थी। अल्लाह ने उन दोनों की तकदीर के धागों को एक बहुत ही अजीम और बड़े मकसद के लिए जोड़ दिया था, जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। रियासत के महल में अब खौफ और मौत का वो खूनी खेल शुरू होने वाला था, जिसकी कीमत शायद फारिस और शम्स दोनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। वजीर ने अपने सबसे खूंखार और जालिम गुंडों को हुक्म दे दिया था कि रेगिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन वो तावीज वाली लड़की मुझे जिंदा चाहिए। रेगिस्तान की उस सर्द और खामोश रात में मौत की एक बहुत ही भयानक और दम घोंटू साजिश तैयार हो चुकी थी, जो अब शम्स का मौत बनकर पीछा कर रही थी। शैतान अपना खौफनाक जाल बिछा चुका था, लेकिन वो ये भूल गया था कि जब अल्लाह किसी की हिफाजत का फैसला कर ले, तो दुनिया का कोई भी जादूगर उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस जालिम और खौफनाक काले कीमियागर की शैतानी फितरत इतनी गिर चुकी थी कि उसने अपने मकसद के लिए एक बेजुबान जानवर की जान लेने में भी कोई खौफ महसूस नहीं किया। वजीर अच्छी तरह जानता था कि शम्स जैसी तेज और निडर लड़की इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आएगी, इसलिए उसने एक बहुत ही बुज़दिल और नीच साजिश रची। रात के पिछले पहर में, जब रेगिस्तान में खामोशी का राज था, वजीर के गुंडों ने उस इकलौते और ठंडे पानी के तालाब में एक बहुत ही खौफनाक काला जहर मिला दिया। ये जहर काले इल्म और शैतानी जड़ी बूटियों से तैयार किया गया था, जिसकी तेज सड़ी हुई और तमघोटू बदबू से तालाब के आसपास के मासूम परिंदे भी तड़प कर मरने लगे थे। सुबह की पहली किरण के साथ जब शम्स की बूढ़ी और प्यासी शेरनी माँ उस तालाब पर पानी पीने आई, तो उस जहरीले पानी के चंद घूंट गले से उतरते ही
एक भयानक कहर टूट पड़ा। शेरनी के विशाल जिस्म में जैसे आग लग गई। वो जहर के दर्द से तड़पते हुए गर्म रेत पर गिर पड़ी और उसकी खौफनाक दहाड़ से पूरे रेगिस्तान का सन्नाटा दहल उठा। शम्स अपनी मां की चीख सुनकर पागलों की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंची, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए वजीर के हथियारों से लैस और जालिम गुंडे बाहर आ गए। उन पैरहम दरिंदों ने शम्स को अपनी तेज और नंगी तलवारों के घेरे में ले लिया और हंसते हुए कहा कि अगर वो अपनी मां को जिंदा देखना चाहती है तो चुपचाप उनके साथ चले। शम्स किसी भी तलवार या मौत से नहीं डरती थी, लेकिन जमीन पर तड़पती और खून उगलती अपनी उस बेजुबान मां की हालत देखकर उसका निडर और मजबूत दिल बुरी तरह टूट गया। अपनी उस जानवर मां की जान बचाने और उसे मजीद तकलीफ से दूर रखने के लिए रेगिस्तान की उस आजाद शेरनी ने खुद को उन जालिमों के खूनी हाथों में सौंपने का भारी फैसला किया। गुंडों ने शम्स के नाजुक हाथों और पैरों में लोहे की भारी और ठंडी जंजीरें डाल दी और उसे घसीटते हुए अमीर के महल के सबसे गहरे, अंधेरे और खौफनाक तहखाने में फेंक दिया। उस खौफनाक तहखाने की दीवारों से रिसते हुए गंदे पानी और जमे हुए खून की ऐसी बदबू आ रही थी जो किसी भी इंसान का दम घोटने के लिए काफी थी। वहां पसरा हुआ घुप अंधेरा किसी पुरानी कब्र की तरह डरावना और सर्द था, जहां चूहों के दौड़ने की आवाजें उस भयानक सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। शम्स उस ठंडे पत्थर के फर्श पर बैठी अल्लाह से अपनी मां की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। तभी अचानक लोहे के भारी दरवाजे के खुलने की चरमराहट से वो खामोशी टूट गई। दरवाजे पर जलती हुई मशाल की पीली रोशनी के साथ कोई और नहीं बल्कि रियासत का वो निडर सिपहसालार और इंसाफ पसंद शहजादा फारिस खड़ा हुआ था। फारिस को जब महल के खुफिया लोगों से वजीर की इस खौफनाक और बुज़दिल साजिश का पता चला तो उसकी रगों में दौड़ता हुआ इंसाफ का खून बुरी तरह खौल उठा था। वो जालिम पहरेदारों की नजरों से बचकर उस अंधेरे तहखाने में दाखिल हुआ। उसके हाथों में ताजा और गर्म रोटियां थीं, जिनकी मीठी महक ने उस बदबूदार हवा को बदल दिया था। लेकिन रोटियों से भी ज्यादा कीमती चीज फारिस के पास वो खास शाही अर्क था, वो नायाब एंटीडोट जो वजीर के बनाए हुए किसी भी खौफनाक जहर का असर फौरन खत्म कर सकता था। फारिस ने शम्स की आंखों में बड़ी नरमी से देखते हुए कहा, डरो मत, मैंने अपने सबसे वफादार और तेज सिपाही के हाथ ये अर्क तुम्हारी शेरनी मां तक रेगिस्तान में भेज दिया है। ये अल्फाज सुनते ही शम्स के होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों से खुशी और राहत के गर्म आंसू छलक पड़े, जो उसकी जंजीरों पर गिरकर चमकने लगे। फारिस ने शम्स के जख्मी हाथों को देखा, जिन पर भारी जंजीरों की वजह से बहुत गहरे और खूनी निशान पड़ गए थे। फारिस का दिल इस जुल्म को देखकर दर्द से भर गया। उसने शम्स को वो ताज़ा और गर्म रोटियां पेश की और शम्स ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कई दिनों के बाद इंसानों का पकाया हुआ पाक रिज़्क अपने मुंह में रखा। उस सर्द और डरावने तहखाने में दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों के बीच एक बहुत ही पाकीज़ा, सच्ची और हलाल मोहब्बत की पहली चिंगारी रोशन हो गई। फारिस की इस निस्वार्थ और सच्ची हमदर्दी ने शम्स के जंगली लेकिन मासूम दिल के सारे खौफ को मिटा दिया था। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसका मददगार भेज दिया है। शम्स के दिल में अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो गया कि जो रब रेगिस्तान में खूंखार जानवरों से परवरिश करवा सकता है, वो इस खौफनाक तहखाने से भी निकाल सकता है। शम्स ने अपने आंसू पोंछते हुए फारिस को अपनी वो दर्दनाक कहानी सुनाई कि कैसे वो बचपन में रेगिस्तान के खौफनाक तूफान में खो गई थी और जानवरों ने उसे पाला था। फारिस उस मासूम लड़की की तकलीफों और रेगिस्तान में उसके कड़े इम्तिहानों की कहानी सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की अल्लाह की खास रहमतों में से है। तभी फारिस की पैनी नजर शम्स की गर्दन में लटके उस चांदी के तावीज पर पड़ी, जो मशाल की रोशनी में एक अजीब सी खौफनाक और नीली चमक दे रहा था। उस तावीज पर बनी हुई वो अजीबो गरीब शैतानी नक्काशी और काले इल्म की लकीरें देखकर फारिस का तेज दिमाग पूरी तरह से झन्ना गया और वो हकीकत समझ गया।
फारिस, जो रियासत का होने वाला अमीर था, वो फौरन समझ गया कि ये कोई मामूली तावीज़ नहीं है, बल्कि ये उसी वजीर के काले इल्म और खौफनाक साजिश का एक अहम हिस्सा है। उसे पूरा यकीन हो गया कि वो जालिम वजीर रियासत की आड़ में मौत का कोई बहुत ही खौफनाक और शैतानी खेल खेल रहा है, जो पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर देगा। दूसरी तरफ वो जालिम वजीर अपने आलीशान कमरे में बैठकर ये सोचकर जश्न मना रहा था कि उसने अपनी साजिश में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो अल्लाह की तदबीर से बेखबर था। फारिस ने शम्स के करीब घुटनों के बल बैठकर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर बड़ी संजीदगी और इज्जत के साथ एक बहुत बड़ी कसम खाई कि वो उसे इस जुल्म से आज़ाद कराएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर राज से पर्दा उठाऊंगा और उस जालिम वजीर के गुनाहों का घड़ा इसी महल के बीचों बीच फोड़कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। फारिस ने कहा। अब तहखाने का वो गहरा अंधेरा सिर्फ मौत और खौफ का ठिकाना नहीं रहा था, बल्कि वो एक नई उम्मीद और इंसाफ की रोशनी का गवाह बन चुका था, जो अल्लाह ने उन दोनों के दिलों में डाल दी थी। फारिस खामोशी से अपने वालिद यानी रियासत के अजीम और इंसाफ पसंद अमीर के शाही और मत्थम रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में जलते हुए महंगे ऊद की खुशबू और अमीर के चेहरे का रूहानी नूर बता रहा था कि वो एक बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान है। फारिस ने अपने वालिद को उस अंधेरे तहखाने का सारा खौफनाक राज और उस जालिम वजीर के काले इल्म की सारी हकीकत साफ साफ बता दी। अमीर कोई आम हुक्मरान नहीं थे। उनकी तजुर्बेकार और गहरी आंखें काफी अरसे से उस वजीर के शैतानी और हराम कामों को महसूस कर रही थीं। उन्हें मालूम था कि वजीर के महल से अक्सर आधी रात को सड़े हुए खून और जलती हुई कंदक की वो भयानक बदबू आती थी, जो शिर्क की निशानी है। लेकिन वजीर अब बहुत ताकतवर हो चुका था, इसलिए अमीर ने उसे रंगे हाथों पकड़ने और पूरी रियासत के सामने बेनकाब करने का एक अजीम फैसला किया। बाप बेटे ने मिलकर बड़ी हिकमत से यह तय किया कि वजीर को अंधेरे में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे एक बहुत बड़ी और सरेआम अवामी अदालत में जलील किया जाएगा। अगली ही सुबह अमीर के शाही हुक्म से रियासत के सबसे तेज दौड़ने वाले घुड़सवारों और मुनादी करने वालों को चारों तरफ दौड़ा दिया गया। रेगिस्तान की तपती रेत से उड़ती हुई धूल और घोड़ों की टापों की जोरदार आवाजों ने हर बस्ती और हर बाजार की खामोशी को चीर कर रख दिया। बड़े बड़े नगाड़ों की वो गूंजती हुई धम धम की भारी आवाज लोगों के कानों में पड़ने लगी और शाही मुनादी करने वालों ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, रियासत के अमीर का फरमान सुनो। शाही महल में रेगिस्तान से लाई गई एक बहुत ही अजीब और जंगली लड़की पाई गई है। इस लड़की की नाजुक गर्दन में एक बहुत ही नायाब और चमकता हुआ चांदी का जादुई तावीज मौजूद है, जो इसके बचपन की इकलौती निशानी है। जिस किसी बदनसीब माँ बाप का बच्चा सालों पहले किसी हादसे में खो गया हो, वो फौरन शाही महल की अवामी अदालत में आकर अपनी औलाद को पहचान ले। ये शाही ऐलान उड़ते उड़ते उस अनजान और गरीब शहर के उस धूल भरे और शोर शराबे वाले बाजार तक भी पहुंच गया, जहां तकदीर के मारे दो लोग मौजूद थे, तारिक और लैला, जो सालों की भयानक गरीबी, भूख और अपने भयानक गुनाहों के पछतावे की आग में जल जलकर बिल्कुल बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। उस वक्त भी तारिक के जख्मी और छिले हुए कंधों पर पानी का एक बहुत ही भारी और गीला चमड़े का मशकीज़ा रखा हुआ था, जिससे पानी टपक रहा था। कड़ी धूप की वजह से उनके चेहरे झुलसकर काले पड़ गए थे और उनके होठ रेगिस्तान की सूखी जमीन की तरह बुरी तरह पड़ चुके थे। अचानक जब मुनादी करने वाले की वो कड़कती हुई आवाज लैला के कानों से टकराई, तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। चांदी का जादुई तावीज, रेगिस्तान की जंगली लड़की। ये अल्फाज किसी आसमानी बिजली की तरह लैला के टूटे हुए दिल पर गिरे। लैला के कांपते हुए और छालों से भरे हाथों से वो भारी मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। ठंडा पानी बाजार की गर्म और प्यासी धूल में बहने लगा, लेकिन लैला को इस वक्त दुनिया की किसी भी चीज का कोई होश नहीं रहा था।
उसके सूखे हुए और बेजान सीने में सालों बाद एक बहुत ही तेज और धड़कती हुई उम्मीद की पाकीज़ा आग अचानक से भड़क उठी थी। उसकी आंखों से जो आंसू बरसों से बह रहे थे, आज उन आंसुओं में गम नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत नूर था। लैला ने अपने दोनों कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और उसकी जबान से अल्लाह की पाकी और उसकी बड़ाई के अल्फाज निकलने लगे। वो बाजार के बीचों बीच फूट फूट कर रोने लगी और तारिक की तरफ देखकर चीखते हुए बोली, मेरे सरताज, क्या आपने सुना? मेरे अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली। बेशक मेरा रब बहुत गफूर और रहीम है। उसने हमारे गुनाहों की वो भयानक सजा खत्म कर दी है। वो हमारी शम्स को हमारे पास वापस ले आया है। तारिक की धुंधली और कमजोर आंखों में भी आंसुओं का एक भारी सैलाब उमड़ आया। उसने फौरन जमीन की उसी गर्म धूल पर अल्लाह के हुजूर सजदा कर दिया। सालों की वो सिसकियां और रातों की वो दर्द भरी ताज्जुद की नमाजें आज अल्लाह के अर्श तक पहुंच गई थी और तौबा का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अब उनके थके हुए जिस्म में बुढ़ापे की वो कमजोरी नहीं रही थी, बल्कि अल्लाह के फजल से उनके अंदर एक बहुत ही अजीब और रूहानी ताकत आ गई थी। उन दोनों ने अपने फटे पुराने और धूल में सने हुए कपड़ों के साथ ही उस शाही महल की तरफ दौड़ लगा दी, जहां उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होना था। उन्हें अपने रब पर पूरा यकीन था कि अब जो भी होगा वो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा और दुनिया का कोई भी काला जादू उनकी सच्ची तौबा के आगे नहीं टिक सकेगा। शाही महल का वो विशाल और खुला हुआ दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ रेशमी लिबासों की सरसराहट और महंगे इत्र की खुशबू फैली थी। दरबार के बिल्कुल बीचों बीच संगमरमर के ठंडे और चिकने फर्श पर शम्स खड़ी थी, जिसके नाजुक हाथों और पैरों में अभी भी लोहे की भारी जंजीरें बंधी हुई थी। तभी वो जालिम वजीर यानी वो खौफनाक काला कीमियागर अपने काले और रेशमी चोगे में आगे बढ़ा, जिसकी आंखों में एक शैतानी लाल और जहरीली चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी भारी और जादुई आवाज में सरेआम झूठ बोलते हुए अदालत में ऐलान किया कि ये जंगली लड़की कोई और नहीं बल्कि बचपन में भागी हुई उसकी अपनी ही एक नाफरमान गुलाम है। बोलते बोलते वजीर ने बहुत ही चालाकी से अपनी उंगलियों को घुमाकर अपने काले इल्म और खौफनाक शैतानी मंत्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे महल की हवा अचानक से बहुत भारी और सर्द होने लगी। दरबार में मौजूद सभी अमीर और रईस लोगों की आंखों पर उस काले जादू का एक बहुत ही गहरा और धुंधला पर्दा पड़ने लगा और वो सब बिना सोचे समझे वजीर की उन झूठी और फरेबी बातों में आने लगे। फारिस और रियासत के इंसाफ पसंद अमीर कुछ समझ पाते और इस जुल्म को रोक पाते, उससे पहले ही महल के भारी और लकड़ी के दरवाजों के पास से एक बहुत ही दर्दनाक और कांपती हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ, यह सरासर झूठ है, यह मेरी अपनी बच्ची है। यह आवाज उस बूढ़ी और फटे हाल लैला की थी, जो तारिक के साथ भारी भीड़ को अपने जख्मी हाथों से चीरती हुई आगे आई। उनके फटे और मैले कपड़ों से पसीने, मिट्टी और गरीबी की बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। महल के रईस और मगरूर लोग उन दोनों भिखारियों की इस बुरी हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन रईसों का वो घमंडी और चुभने वाला मजाक पूरे दरबार की ऊंची दीवारों में गूंज रहा था। लेकिन तारिक और लैला को अब दुनिया की किसी भी बेइज्जती या बादशाह के खौफ की कोई परवाह नहीं थी। रियासत के नेक और इंसाफ पसंद अमीर ने अपना हाथ उठाकर पूरी भीड़ को फौरन खामोश कर दिया, क्योंकि वो अपनी अदालत से किसी भी मजलूम और रोते हुए फरियादी को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अमीर ने अपनी भारी और रोबदार आवाज में कहा, ए फटेहाल औरत, अगर तुम सच कह रही हो कि ये तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हें अपनी इस बात का कोई बहुत ही पुख्ता और सच्चा सबूत इस अदालत को देना होगा। लैला की झर्रियों से भरी आंखों से गर्म आंसुओं का एक भारी सैलाब बह रहा था। उसने अपने अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत की और उस भरी अदालत में अपने उस सालों पुराने और खौफनाक गुनाह का इकरार कर लिया। उसने रोते हुए और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए चीख कर कहा, ए लोगो,
میں نے اولاد کی طلب میں اپنے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اس کالے جادوگر سے ایک شیطانی بیج کا حرام سودا کیا تھا۔ پورے بھرے ہوئے دربار میں اچانک سے شمشان جیسا سناٹا چھا گیا۔ لیلا نے شمس کی طرف اپنی کانپتی ہوئی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میری بچی کی گردن میں جو چاندی کا تعویذ ہے، اس کی پشت پر ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اس تعویذ کی پچھلی طرف اللہ کے ایک خاص اور مقدس نام کی بہت ہی باریک نقاشی کی گئی ہے، جسے اس ظالم جادوگر نے سالوں پہلے کھرونچ کر مٹانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ سنتے ہی وزیر کا وہ شیطانی پیلا چہرہ موت کے خوف سے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس نے پسینے میں تربتر ہو کر چلا کر پہرے داروں سے کہا کہ ان دونوں پاگلوں کو فوراً گرفتار کر کے سب سے گہرے تہہ خانے میں ڈال دو۔ لیکن تبھی اچانک محل کے بڑے دروازے پر ایک بہت ہی تیز، پاکیزہ اور روحانی روشنی چمکی اور زمین پر لاٹھی کی ایک زوردار کک کی آواز پورے خاموش دربار میں گونج اٹھی۔ وہاں دروازے پر وہی آنکھوں سے اندھا لیکن دل کا روشن بوڑھا درویش کھڑا تھا، جس کے روحانی چہرے سے اللہ کے نور کی ایسی تیز کرنیں پھوٹ رہی تھیں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جائیں۔ اس درویش نے اپنی جلال اور عبادت سے بھری ہوئی بھاری آواز میں کہا، اے ظالم اور ناپاک شیطان، تیری ان خوفناک سازشوں کا گھڑا اب پوری طرح سے بھر چکا ہے۔ اب اللہ کا حق اور اس کا سچ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ اس مظلوم عورت کے سچے آنسوؤں نے اور اس کی توبہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اب تیرا یہ ناپاک کالا جادو اللہ کے نور کے آگے ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹک سکتا۔ درویش کے ان پاکیزہ الفاظ کے ساتھ ہی اس خوفناک وزیر کے پورے جسم سے بدبودار اور کالا دھواں بہت تیزی سے اٹھنے لگا۔ اس کا اپنا ہی پاپی کالا جادو اسی پر الٹا اور ایک بھیانک قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ وہ ظالم اور فریبی وزیر دردناک چیخیں مارتا ہوا سب کے سامنے اپنے ہی اندر سلگنے والی شیطانی آگ میں زندہ چلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پل بھر میں ایک بدبودار کالی راکھ کی ڈھیری میں بدل گیا۔ پورے دربار میں اللہ کی عظیم قدرت اور اس کی بڑائی کا ایک بہت ہی روحانی خوف چھا گیا۔ سبھی لوگ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے اور اپنے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک عجیب سا معجزہ ہوا اور شمس کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی ہوئی بھاری زنجیریں خود بخود ٹوٹ کر ایک تیز آواز کے ساتھ زمین پر گر پڑی۔ شمس نے اپنی ان جنگلی لیکن معصوم اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس فٹے حال لیلا کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے جھری دار چہرے کو بہت غور سے دیکھا۔ خون نے خون کو فوراً پہچان لیا۔ لیلا کی آنکھوں میں بالکل وہی ممتا اور وہی سچی تڑپ تھی جو شمس نے سالوں پہلے اس خوفناک طوفان کے وقت اپنی دھندلی یادوں میں محسوس کی تھی۔ شمس فوراً دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنی بوڑھی اور کمزور ماں کو پوری طاقت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی کی درد بھری چیخیں محل کی ان اونچی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ طارق نے بھی روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری بیٹی کے ماتھے کو چوما اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سالوں کی وہ بھیانک جدائی، وہ ظلم اور وہ درد آج ان کے گرم آنسوؤں میں پوری طرح سے دھل چکا تھا۔ ایک کھویا ہوا اور برباد ہوا پریوار آج اللہ کی عظیم رحمت اور سچی توبہ کی بدولت واپس ایک ہو گیا تھا۔ اس منظر نے دربار میں موجود ہر انسان کے پتھر جیسے دل کو پگھلا دیا تھا۔ امیر کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کا وہ معجزہ دیکھا تھا جو کسی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ سچی توبہ نے اس خوفناک اور کالے جادو کی ان بھاری زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا تھا جو برسوں سے اس معصوم پریوار کی زندگی میں ایک عذاب بن کر لپٹی ہوئی تھی۔ انصاف پسند امیر اور بہادر شہزادے فارس نے بھی اس عظیم، روحانی اور پاکیزہ ملن کو دیکھ کر فوراً زمین پر اللہ کے حضور شکر کا سجدہ ادا کیا، کیونکہ آج جھوٹ مٹ گیا تھا اور سچ کی مکمل جیت ہو چکی تھی۔ شمس اب انسانوں کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، لیکن اس کے دل کا ایک بہت بڑا حصہ آج بھی ریگستان کی اس تپتی ہوئی ریت میں تڑپتا تھا۔
उसने रेशम के मुलायम और खुशबूदार लिबास तो पहन लिए थे, लेकिन वो अपनी उस बूढ़ी शेरनी माँ के एहसानों को कभी नहीं भूली थी। अक्सर ठंडी और चांदनी रातों में शम्स चुपके से रेगिस्तान की तरफ निकल जाती, जहां ठंडी हवाओं में खजूर के पत्तों की सरसराहट होती थी। वो उस विशाल शेरनी के गले लगकर उसके खुरदुरे बालों को सहलाती और दोनों के दरमियान एक खामोश लेकिन बेहद गहरी और रूहानी मोहब्बत बहने लगती। जानवरों के साथ बिताई गई उस खुरदुरी जिंदगी ने उसे ये सिखा दिया था कि अल्लाह की कुदरत और उसकी मोहब्बत हर बेजुबान में भी बसती है। कुछ ही दिनों के बाद रियासत के इंसाफ पसंद अमीर ने अपने बहादुर बेटे फारिस की शादी शम्स के साथ बहुत ही धूमधाम से तय कर दी। पूरे शहर को जन्नत की तरह सजाया गया था। हर गली और हर चौराहे पर मिट्टी के दियों की सुनहरी और गर्म रोशनी जगमगा रही थी। हवा में महंगे ज़ाफ़रान, जलते हुए ऊद और ताज़े गुलाबों की एक ऐसी मीठी महक फैली हुई थी जो लोगों के दिलों को सुकून और खुशी दे रही थी। औरतों के हाथों में बजने वाले दफ की छम छम और उनकी मीठी आवाज़ों से गाए जाने वाले मुबारकबाद के गीतों ने पूरे माहौल को पाकीज़ा बना दिया था। शम्स अपने सुहाने और लाल जोड़े में किसी चमकते हुए चांद की तरह लग रही थी और फारिस की आंखों में उसके लिए एक बेहद सच्ची और हलाल मोहब्बत थी। ये शादी सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि सच्चाई, बहादुरी और अल्लाह पर किए गए उस मजबूत यकीन का बहुत ही खूबसूरत मिलाप था। दूसरी तरफ तारिक और लैला के वो फटेहाल और गरीबी के दिन अब अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे। रियासत के अमीर ने तारिक के हुनर की कद्र करते हुए उसे शाही महल का सबसे बड़ा और इज्जतदार कारीगर बना दिया था। उनके चेहरे पर जो पहले गुनाहों की कालिख और खौफ था, वो अब सच्ची तौबा के आंसुओं से धुलकर एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी नूर में बदल चुका था। कुछ ही सालों में उनका घर एक बार फिर आबाद हो गया, लेकिन इस बार वहां दौलत का गुरूर नहीं, बल्कि पोते पोतियों की मासूम खिलखिलाहट गूंजती थी। जब तारिक अपने नन्हे पोतों को सीने से लगाता तो उसके दिल से अपने रब के लिए बेइंतहा शुक्र और तारीफ के अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि जो रिस्क और जो खुशियां अल्लाह के सीधे रास्ते पर चलकर मिलती हैं, उनमें एक बहुत ही अजीब सी बरकत और सुकून होता है। शादी की उस बड़ी और मुकद्दस महफिल में जब सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, अचानक वो ही आंखों से अंधा दरवेश वहां पहुंचा। दरवेश के आते ही पूरी महफिल में एक बहुत ही पुरसुकून और अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी उसका पैगाम सुनने के लिए ठहर गई हो। महल की खूबसूरत फवारों से बहने वाले मीठे पानी की छम छम आवाज भी जैसे दरवेश की उन पाकीज़ा बातों पर आमीन कह रही थी। दरवेश ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई, अपना नूरानी चेहरा लोगों की तरफ किया और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में एक बहुत बड़ी नसीहत दी। उसने कहा, ऐ आदम की औलाद, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना और सच्ची दौलत खनखनाते हुए सोने या चांदी के सिक्कों में बिल्कुल नहीं है। दौलत तो वो है जो इंसान के दिल को सुकून दे, और वो सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसके शुक्र में छुपा हुआ है। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादू उन शैतानी और काले मंत्रों में नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में की गई एक सच्ची तौबा में है। जब एक इंसान टूटकर, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, सच्चे आंसुओं के साथ अपने पैदा करने वाले रब के सामने आधी रात को रोता है, तो वो तौबा के गर्म आंसू इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि वो तकदीर के लिखे हुए अजाब को भी मिटाकर उसे हमेशा की रहमत और सुकून में बदल देते हैं। चाहे तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों को क्यों ना छू ले, अल्लाह की रहमत तुम्हारे हर गुनाह से बहुत बड़ी और बहुत वसी है। इसलिए हमेशा अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखो, क्योंकि जो उस पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते निकालता है जो उसने सोचे भी नहीं होते। दरवेश के इन सुनहरे और पाकीज़ा अल्फाज ने वहां मौजूद हर इंसान के दिल को अंदर तक हिला दिया, और कई लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वहां मौजूद हर अमीर और गरीब शख्स ने अपने दिलों में अल्लाह की रहमत का वो सुकून महसूस किया
जो दुनियावी लफ्जों में बिल्कुल बयान नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक कहानी का अंजाम नहीं था, बल्कि ये हर उस भटके हुए इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी जो गुनाहों के अंधेरे में खो चुका है। ये एक ऐसा रूहानी सफर था जिसने एक बर्बाद हुए परिवार को जहन्नुम के किनारे से निकालकर दुनिया की सबसे खूबसूरत जन्नत में ला खड़ा किया था। लैला ने अपनी बेटी शम्स का माथा चूमा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई, क्योंकि आज उसके दिल में दुनिया का सबसे मुकम्मल और गहरा सुकून था। उसने जान लिया था कि शैतान इंसान को सिर्फ डरा सकता है और झूठे वादे कर सकता है, लेकिन सच्ची हिफाजत और अता सिर्फ परवरदिगार की तरफ से होती है। तारिक ने भी अपनी बीवी और बेटी का हाथ थाम लिया। उनकी ये मुकम्मल खुशी इस बात की गवाह थी कि अल्लाह कभी सच्ची तौबा करने वालों को रुसवा नहीं करता। अल्लाह की असीम रहमत, उसकी बेइंतहा माफ़ी और उसकी पाकीज़ा मोहब्बत का ये खूबसूरत पैगाम हमेशा के लिए उन रेगिस्तानी हवाओं में अमर हो गया। और इस तरह सच्चाई और तौबा की वो ठंडी और रूहानी खुशबू हमेशा के लिए उस शहर की फिजाओं में महकती रही, जो हर दिल को अल्लाह की याद दिलाती थी। मेरे अजीज दोस्तों, रेगिस्तान की ठंडी हवाओं और तौबा के गर्म आंसुओं से भीगी हुई इस रूहानी कहानी का सफर यहीं मुकम्मल होता है। जब आपने लैला के उस दर्द और शम्स के गले लगने की उस सुकून भरी गर्माहट को महसूस किया, तो आपके दिल पर इसका क्या गहरा असर हुआ। इस पूरी दास्तान में छुपी हुई कौन सी वो पाकीज़ा हिकमत और नसीहत है जिसने आपकी रूह को सबसे ज्यादा झकझोरा है? क्या वो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल था, या फिर सच्ची तौबा की वो अजीम ताकत जिसने काले जादू की जंजीरों को तोड़ दिया? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने और किस मुल्क से हमारी ये आवाज सुन रहे हैं। यह जानकर हमें बेइंतहा खुशी मिलती है कि अल्लाह का ये खूबसूरत पैगाम सरहदों को पार करके आप तक पहुंच रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी भी तार को छुआ है और आपकी आंखों को नम किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुस्तकबिल में भी हम आपको ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियां सुना सकें। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ा हौसला है, जिससे हम इस्लाम के इन खूबसूरत और हिकमत भरी दास्तानों को जिंदा रख सकते हैं। इस नेकी के काम में हमारा साथ दें, क्योंकि अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना भी हमारे दीन में एक बेहतरीन सदका जारिया है। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी सच्ची मोहब्बत से हमेशा आबाद रखे। आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई सबक आमूज कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।